So today we are going to discuss about the extraocular muscles of the eye. Okay. So one thing you should remember, the extraocular muscles of the eye, they are not asked as a short note to you. They may be asked as a short note to you in the first MBBS, particularly when you are learning a ophthalmology subject. But here they are going to ask you as a 1 mark question or a 2 mark question or for MCQ and NEET examination. Okay. So which are the extraocular muscles of the eye? So there are total 6 extraocular muscles of the eye. Okay. First one is the superior rectus, then inferior rectus, then medial rectus and lateral rectus. So superior rectus, inferior rectus, medial rectus and lateral rectus. Okay. So there are total 6 extraocular muscles of the eye. Okay. Superior rectus, inferior rectus, medial rectus and lateral rectus. And there are also 2 oblique muscles. Okay. Which are 2 oblique muscles? Superior oblique and inferior oblique. So these are the 2 oblique muscles. Okay. Superior oblique muscles and inferior oblique muscle. These are the 2 oblique muscles. Okay. So total there are 4 rectus muscle and 2 oblique muscle. Clear everyone? 4 आपके हो जाएंगे rectus, 2 हो जाएंगे oblique. 4 rectus आसान है, superior rectus, inferior rectus, middle rectus and lateral rectus. और 2 oblique, superior oblique and inferior oblique. If you carefully observe over here, this is your superior oblique and this is your inferior oblique. So both obliques are actually towards the medial side. If you carefully observe, they are attached towards this side, that is the medial side, because this is medial rectus. Okay. And this is superior rectus, inferior rectus, medial rectus and lateral rectus. Now you have to remember the nerve supply to these muscles. For these you have to remember there are 3 nerve supply to these muscles. 3rd cranial nerve, 4th cranial nerve and 6th cranial nerve. That's why we are routinely say 3, 4th and 6. Okay. 3, 4 और 6. 3, 4, 6. तो ये याद रखना है. कभी कभी स्टूडेंट को लगता है 3, 4, 5 की जगह कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन याद रखना ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है. यूजुअली आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर द एक्शंस ऑफ अ 3rd cranial nerve, 4th cranial nerve and 6th cranial nerve. तो ऐसा क्यों लिखते हैं? बिकॉज 3rd, 4th and 6th ऑल दीज 3 nerve आर गोइंग टू सप्लाई एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. इसके लिए पैर बनती है 3, 4 और 6. ओके. नॉट अ 3, 4 and 5. ओके. So which muscles are supplied by 3rd cranial nerve, which muscles are supplied by 4th cranial nerve and which muscles are supplied by 6th cranial nerve. तो इसको लिए एक निमोनिक है, that is a very famous निमोनिक. उसका नाम है SO4 and LR6. क्या नाम है? SO4 and LR6. That means superior oblique is supplied by a 4th cranial nerve. Okay. So आप देखो ये 4th cranial nerve है, that is going to supply a superior oblique muscles over here. Okay. यहाँ पे पिक्चर में मत फंस जाना, ये थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा, बट आप देखो कि superior oblique is supplied by a 4th cranial nerve. Okay. Because this is your superior oblique, then this is supplied by a 4th cranial nerve. Okay. Now 6th cranial nerve, lateral rectus. So the 6th cranial nerve is going to supply lateral rectus. Okay. तो SO4 and LR6. SO4 मतलब superior oblique is supplied by a 4th cranial nerve and LR6 मतलब lateral rectus is supplied by a 6th cranial nerve. Rest of all other muscles are supplied by a 3rd cranial nerve. Clear? तो SO4 और LR6 याद रखना है, बाकी के सारे मसल्स 3rd cranial nerve से सप्लाइड होते हैं. ओके. तो ये आसान हो जाएगा. बार बार MCQs में आ सकता है, नीट में आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है. 4 मसल के नाम लिखे होगा और पूछोगे कि कौन सा मसल इज सप्लाइड बाय 4th cranial nerve, तो याद रखना आपको सुपीरियर ऑब्लिक आंसर आएगा. फिर 4 नाम लिखे हुए पूछा है कौन सा मसल इज सप्लाइड बाय 6th cranial nerve, तो आपका आंसर आ जाएगा लेटरल रेक्टस. पर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है ट्रिकी वे, क्योंकि वाइवा में कभी कभी टीचर्स पूछते हैं विच मसल इज सप्लाइड बाय 4th, तो आपका आंसर राइट होता है सुपीरियर ऑब्लिक. वेरी गुड. विच मसल इज सप्लाइड बाय 6th, तो भी आपका आंसर राइट रहता है लेटरल रेक्टस. वेरी गुड. बट टीचर्स मेनी टाइम्स आस्क इन द वाइवा or in the MCQ examination, they are going to ask you which muscles are supplied by 3rd cranial nerve. So this is a tricky one. कभी कभी ये पूछते हैं, क्योंकि ये 2 अलग जाते हैं तो यही मेनली पूछते हैं, लेकिन कभी कभी रूटीन क्वेश्चन आता है जैसे कि which muscles are supplied by 3rd cranial nerve in the MCQ. उसमें 4 नाम लिखे होंगे और एक एक्सेप्ट वाला होगा.
ओके या कोई भी एक मसल का नाम लिखा होगा, इसको आपको आंसर करना पड़ेगा। बोथ भी आंसर आ सकता है, 1 and 2 बोथ, ऐसा कोई भी फ्रेम क्वेश्चन हो सकता है थर्ड करने लो। तो एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपके पास टाइम बहुत ही लेस होता है, बहुत ही थोड़े टाइम में आपको रैपिडली एमसीक्यू आंसर करने होते हैं। शायद टाइम भी हो, लेकिन आप अगर फास्ट आंसर कर देते हो तो आपका टाइम बचता है और जो टफ एमसीक्यू है उसको सॉल्व करने के लिए वो टाइम आपको काम आ जाएगा। सेम इन द वाइवा, आपको अगर रैपिडली आंसर करते हो तो अच्छी इंप्रेशन बनती है, टीचर्स भी आगे क्वेश्चन फर्दर पूछते हैं, आपको अच्छे मार्क मिलते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आती है, थर्ड क्रेनियल नाउ सप्लाई विच मसल्स, ऐसा पूछते हैं तो स्टूडेंट्स यही आंसर करते हैं कि सर SO4 और LR6 नहीं है, बाकी के सब। सो दैट इज नॉट आंसर, बाकी के सब ऐसा तो आप वाइवा में नहीं बोल सकते, फिर एमसीक्यू पे भी आप पिक नहीं कर सकते। तो ये सबको आसान है कि 6 मसल है, ओके 1 by 1 जाए तो 6 मसल है, इसमें से 2 4th और 6th ने कवर कर लिए, तो बाकी के 4 है, सबको पता है। लेकिन ये 4 नाम याद करने में बहुत ही देर लगती है, कभी कभी दूसरे के जगह कुछ अलग भी बोल जाते हैं। क्यों देर लगती है, क्योंकि हम यही रट्टा मार के चलते हैं कि 4th क्रेनियल नाउ एसो सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगी, 6th क्रेनियल नाउ लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी। सभी स्टूडेंट्स को एंड में एक ही चीज याद रहती है, SO4 एंड LR6। दिस इज वेरी गुड फॉर यू, SO4 LR6 याद रह गया, आपके मार्क्स आ गए। पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि बाकी के 4 मसल है वो बोलने की हैबिट रखना। ओके अभी आप खुद सोचो कि थर्ड क्रेनियल नाउ सप्लाई टू विच मसल्स, तो ये 2 के अलावा बाकी के 4 ऐसा मत बोलो, बाकी के 4 के नाम बोलने के ट्राई करो। ओके जैसे कि आप बोलो थर्ड क्रेनियल नाउ सप्लाइज टू विच मसल, तो आपका आंसर आएगा सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ऐसा आप 2-3 बार बोल जाओगे तो हैबिटली आप स्पीडली आंसर कर पाओगे, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ओके सो मैं यही चाहता हूं कि बाकी के 2 अलावा बाकी के 4 थर्ड से, इसकी जगह आप 4 के नाम बोलने के 1-2 बार हैबिट कर दोगे तो फिर ये लास्ट में एग्जाम में एमसीक्यू में भी फास्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज 4th and 6th आपको याद रखना है, SO4 एंड LR6। अभी आपको देखना है व्हाट आर द एक्शन ऑफ दीज मसल्स। तो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द एक्शन ऑफ दीज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। ओके सो दीज आर द एक्शंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। ओके यहाँ पे इमेज में भी दिखा है, सुपीरियर रेक्टस ऐसे ले जाएगी अपवार्ड्स, इंफीरियर रेक्टस नीचे ले जाएगी, लेटरल रेक्टस इस तरफ, मीडियल रेक्टस इस तरफ, एंड ऑब्लिक्स यार यूजुअली कॉजेस इंटॉर्जन एंड एक्सटॉर्जन। ओके ये इनका काम है ऑब्लिक्स का, इंटॉर्जन एंड एक्सटॉर्जन। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ओके तो दीज आर देयर एक्शंस, ये सारी आपको याद रखनी है, बहुत ही टफ टेबल है। ओके 10 बार रट्टा मारोगे तो भी याद रखना वाला रट्टा मार के याद रख सकता है, पर ये डिस्टर्ब कर सकता है आपको बार बार एग्जाम में, क्योंकि ये कैसा है, अगर आपने एडक्शन की जगह एबडक्शन लिख दिया तो मार्क चले जाएंगे। तो केयरफुली याद रखना और सभी अच्छे से लिख के आना। लेकिन इसको कैसे याद रखते हैं, इसकी मैं टेक्निक देखता हूँ निमोनिक आपको, तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। यूजुअली नॉट इन द फर्स्ट एमबीबीएस बट दिस इज मेनली आस्क्ड इन द थर्ड फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट एमबीबीएस में फिर इंडिविजुअल मसल की एक्शन 1 मार्क में आ सकती है या एमसीक्यू में आ सकती है। ओके तो व्हाट इज द निमोनिक फॉर दैट, इसके लिए आपको याद रखना है this line. Okay what is this line, all obliques are abductors and all recti are adductors। कौन सी लाइन है, all obliques are abductors, all recti are adductors except lateral rectus। ओके एक्सेप्ट वाला पार्ट याद रह जाएगा। lateral rectus कैसे याद रखोगे, क्योंकि देखो ये अलग ही मसल है, इसको नाउ सप्लाई भी एक अलग थी LR6 वाली, तो ये भी एक रूटीन रूल्स में नहीं चलता, अलग से चलता है। तो लेटरल रेक्टस को 6th नाउ सप्लाई करती थी, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सेप्ट है। तो क्या कीवर्ड है आपके लिए, ऑब्लिक्स आर एबडक्टर्स, बी याद रखना, बी ऑब्लिक में भी बी आता है, एबडक्टर्स में भी बी आता है, तो ऑब्लिक्स आर एबडक्टर्स। बाकी क्या बचा, रेक्टाई, तो रेक्टाई को आपको करना है एडक्टर्स। क्लियर एवरीवन, अभी वापस टेबल में देखते हैं। ओके सो दिस इज द मसल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई। ओके तो पहले हम देखेंगे रेक्टस, मीडियल रेक्टस क्या होना चाहिए, ये रेक्टी है कि ऑब्लिक है, रेक्टी है। रेक्टी क्या करता है, एडक्शन। क्लियर, सेम वे अभी हम देखते हैं ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक ओ, तो क्या करेगा,
ओ ऑब्लिक एबडक्शन। ओके, तो देखो आप रेक्टी एडक्शन, लेटरल रेक्टस एक्सेप्ट था, इसकी वजह से एबडक्शन, सुपीरियर रेक्टस देखो एडक्शन एडक्शन, तो सारे रेक्टी एडक्टर्स कर रहे हैं। देखो सुपीरियर रेक्टस क्या कर रहा है, एडक्शन, इंफीरियर रेक्टस भी क्या कर रहा है, एडक्शन, मीडियल रेक्टस भी क्या कर रहा है, एडक्शन, लेकिन लेटरल रेक्टस एक्सेप्ट था, इसकी वजह से वो कर रहा है एबडक्शन। और दोनों ऑब्लिक देखो आप, सुपीरियर ऑब्लिक कर रहा है एबडक्शन, इंफीरियर ऑब्लिक भी कर रहा है एबडक्शन। तो ऐसे आपको ये 6 तो फिलअप हो गए। ओके, बाकी के 4 देखते हैं कैसा फिलअप करते हैं। इसमें आपको याद रखना है आई नॉट इज फॉर आई साथ में नहीं रहेगी, लेकिन आई के साथ ई जाएगा। तो कैसे याद रखो, देखो आप आई वाले यहाँ पे 2 ही मसल है, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। ओके, बाकी तो सुपीरियर वाला है, देखो सुपीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस। इंफीरियर वाले 2 है, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। तो इंफीरियर में आई के साथ आई नहीं जाएगा, बल्कि ई जाएगा। सो इन केस ऑफ इंफीरियर रेक्टस, इंस्टेड ऑफ इंटॉर्जन यू हैव टू राइट वर्ड एक्सटॉर्जन। ओके, तो इंफीरियर रेक्टस में आएगा एक्सटॉर्जन, सेम वे इंफीरियर ऑब्लिक में भी आएगा एक्सटॉर्जन।